Hello students, welcome to Petrogate Academy online lecture series. Today I am going to discuss the questions of engineering mathematics for GATE Petroleum Engineering 2020. So question number 1, based on the differential equation, question is the solution of the differential equation dy by dx plus y upon x is equal to x for x is not equal to 0 with the condition y is equal to 1 at x is equal to 1 is given by 4 options are available. So first of all, the given equation dy by dx plus y upon x is equal to x. So first of all, we characterize the nature of the given equation. So given equation is a standard form of first order and first degree ordinary linear differential equation dy by dx plus px of y is equal to q of x. This is the first order and first degree ordinary linear differential equation. So this is given equation 1 and this is standard form. So compare equation 1 with this standard form. So we obtain p of x is equal to 1 upon x and q of x is equal to x. So in that case, when we compute the solution of first order and first degree ordinary linear differential equation, so first of all compute the integrating factor. So integrating factor of this equation is e की power integral of px dx, and then the complete solution dependent variable is y multiply by the integrating factor is equal to integral right hand side, that is q of x multiply by integrating factor dx plus constant of integration c. So for this, here px is 1 upon x, qx is equal to x, and initial condition is y is equal to 1 at x is equal to 1, means y at 1 is equal to 1. So in that case, the integrating factor of the equation is equal to e की power integral of px dx, and this is equal to e की power integral of px is 1 upon x dx. So e की power integral of 1 upon x, that is integral of 1 upon x with respect to x is ln x, and here logarithmic cancel with the exponential, then this is equal to x. So integrating factor of the given equation is x. So the complete solution is dependent variable is y multiply by integrating factor is equal to integral right hand side q of x into integrating factor integrate with respect to x plus constant of integration c. So y multiply by integrating factor is x is equal to integral qx is x. So x multiply by integrating factor x integrate with respect to x plus c. So this is equal to integral of x square dx plus constant of integration c, and we know that integral of x की power n dx is equal to x की power n plus 1 upon n plus 1 for n is not equal to minus 1. So this will be y multiply by x is equal to integral is x की power 3 upon 3 plus c, that is x की power 2 plus 1 is 3 upon 2 plus 1 is 3, or y of x is equal to taking this x in the right hand side. So this is x cube upon 3x plus c upon x. So 1x is cancelled, so this is 2, that is x square upon 3 plus c upon x. This is y of x, that is this is the solution of given differential equation. But
given the initial condition y1 is equal to 1. So with the help of the initial condition we compute the value of constant c. तो यहाँ पर आपने constant c का वैल्यू कंप्यूट करना, तो हम यहाँ पर कंडीशन यूज करेंगे यूजिंग y1 is equal to 1. When x is equal to 1, so y is equal to 1. So taking x is equal to 1 in the both side of this equation. So therefore y1 is 1 is equal to 1 square is 1 upon 3 plus c upon 1 is itself c. So यहाँ से आपके पास c का वैल्यू मिलेगा कांस्टेंट c इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन 3, 3 माइनस 1 2 अपॉन 3. अब ये c का वैल्यू आप यहाँ पर सब्सटीट्यूट करें. सो देयरफॉर y ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन 3x. सो दिस विल बी the complete solution of the given differential equation. So here 4 options are available. Option A, y is equal to 2 upon 3x plus x square upon 3. Option B, y is equal to 2 upon 3x square plus x upon 3. Option C, y is equal to 2 upon 3 plus x upon 3. And option D, y is equal to x upon 2 plus 1 upon 2x. That is option A is the option A is the correct option because this is x square upon 3 plus 2 upon 3x. So the correct option for the given differential equation is A. Now second question is based on the Laplace transform. So here question is the inverse Laplace transform of the function fs is equal to 1 upon s square plus 1 is given by means 4 ऑप्शंस आर अवेलेबल और इसमें से एक ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा. तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा उसको हमें आइडेंटिफाई करना है यहाँ पर. तो सबसे पहले एफ एस आपको गिवन है 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, दैट इज एस स्क्वायर प्लस एस, दैट इज हम इसको लिखेंगे 1 अपॉन एस प्लस 1, दैट इज एस टेकिंग एक्स इज कॉमन इन द डिनोमिनेटर, सो एस टाइम्स ऑफ एस प्लस 1. एंड अब आप इसके पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे. पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए लिखेंगे आप ए अपॉन एस प्लस बी अपॉन एस प्लस 1. तो आपके पास एस प्लस 1 इज इक्वल टू ए अपॉन एस प्लस बी अपॉन एस प्लस 1. अब आपने ए और बी को कंप्यूट करना. ए और बी को कंप्यूट करने के लिए आप लिखेंगे इज इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ एस प्लस 1 प्लस बी टाइम्स ऑफ एस अपॉन एस प्लस 1 and left hand side is s plus 1. So cancel both side s plus 1. So we obtain 1 is equal to a times of s plus 1 plus b times into s. अब यहाँ पर आप इनिशियली पुट करेंगे s इज इक्वल टू 0 एंड s इज इक्वल टू -1. सो जब आप s को 0 पुट करेंगे, आप s को 0 पुट क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर s प्लस 1 होगा. आप s प्लस 1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे टेकिंग s प्लस 1 इज इक्वल टू 0. सो s इज इक्वल टू 0 एंड s प्लस 1 इज इक्वल टू 0 मीन्स s इज इक्वल टू -1. सो यहाँ पर आप जैसे ही s को 0 के इक्वल पुट करेंगे इस आइडेंटिटी में, सो वी ऑब्टेन 1 इज इक्वल टू पुट s इज इक्वल टू 0 a टाइम्स ऑफ 0 प्लस 1 प्लस b इंटू 0. तो यहाँ से आपके पास a का वैल्यू कितना आएगा, a इज इक्वल टू 1. नाउ सेकेंड आप यहाँ पर s को -1 पुट करेंगे. जैसे ही आप s को 1 पुट करेंगे सो 1 इज इक्वल टू a -1 प्लस 1 प्लस b इंटू -1. तो यहाँ से आपके पास प्लस 1 से -1 कैंसिल हो जाएगा. सो b का वैल्यू आएगा -1. सो a और b को आप यहाँ पर पुट करेंगे तो वैल्यू मिलेगी a अपॉन एस -1 अपॉन एस प्लस 1. सो दिस इज द रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन फॉर द गिवन फंक्शन f(x). अब आपने क्या करना होगा, यहाँ पर आपने इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कंप्यूट करना. सो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कंप्यूट करने के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म of a function fs is equal to inverse Laplace transform of s plus 1. अभी s plus 1 के हमने पार्शियल फ्रैक्शन किए हैं तो ये बनेगा 1 अपॉन एस माइनस 1 अपॉन एस प्लस
1। अब यहाँ पर लीनियरली प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम यूज करेंगे, दैट इज हम इसको लिखेंगे L इनवर्स ऑफ 1/s माइनस L इनवर्स ऑफ 1/s प्लस 1। सो L of 1, that is Laplace transform of 1 is 1/s. So it implies that L inverse of 1/s is equal to 1. हम जानते हैं कि L of e की पावर at is equal to 1/s minus a. So L inverse of 1/s minus a is equal to e की पावर at. तो यहाँ पर आपके पास L inverse of 1/s प्लस 1 है, तो s प्लस 1 मीन्स a का वैल्यू आपके पास -1 होगा। जब a का वैल्यू 1 होगा तो ये बनेगा L इनवर्स ऑफ 1/s प्लस 1। सो a को आप -1 पुट करेंगे सो e की पावर -t। सो L इनवर्स ऑफ 1/s इज 1 माइनस L इनवर्स ऑफ 1/s प्लस 1 इज e की पावर -t। सो हेयर 4 ऑप्शंस आर अवेलेबल। फर्स्ट ऑप्शन इज 1 minus e की पावर -t. So this is the correct option for the inverse Laplace transform for the given function 1/s square plus s. Second is 1 plus e की पावर -t is the wrong option. Third is 1 plus e की पावर t is wrong option. Fourth is 1 minus e की पावर t is wrong option. So correct option is A. Next question based on the numerical methods. Match the following means we have the 3 options P, Q, R. तो आपने क्या करना कि कौन सा मेथड किस पर्टिकुलर सिस्टम को सॉल्व करेगा वो आपने आइडेंटिफाई करना। सो Gauss-Seidel method solve for linear algebraic equation, that is a1x plus b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1। इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जब भी लीनियर अलजेब्राइक सेट ऑफ लीनियर अलजेब्राइक इक्वेशन होगा तो उसके लिए हम गॉस-सीडल मेथड, गॉस एलिमिनेशन मेथड एक्सेट्रा यूज करते हैं। तो ऑप्शन पी थर्ड दैट इज लीनियर अलजेब्राइक इक्वेशन को सॉल्व करेगा। ऑप्शन क्यू फॉरवर्ड न्यूटन गॉस मेथड, दैट इज दिस मेथड also known as Gauss forward Newton's method, and this method solve the interpolation technique, that is when we compute the any statistical data and we want to compute the value of any point for the given statistical data, so we apply Gauss forward Newton or backward formula. So here formula is mentioned forward Newton Gauss method. So this method solve the interpolation technique. Third one is R. R means Runge-Kutta method. So Runge-Kutta method solve the non-linear differential equation. Non-linear differential equation means algebraic as well as transcendental equations. So option P related to third, option P related to third, option Q related to first, option Q related to first, option R related to second, option R related to second. So आपने जो नीचे के 3 ऑप्शंस गिवन है, ऑप्शन P थर्ड से कहीं पर भी मैच नहीं करता, इट मीन्स ऑप्शन ए दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन प्रॉब्लम। सो यहाँ तक मैं समझता हूँ आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, consider a vector field capital A is equal to 3xz iota plus 2xyj minus yzk, where I, j and k are the unit vectors along the x, y and z directions respectively. The divergence of a vector field capital A एट द पॉइंट 1 1 1 इज इक्वल टू। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। अब आपके पास अगर प्लेन की बात करें हम, ये एक्स एक्सिस होगी,
ये जेड एक्सिस होगी और ये वाई एक्सिस होगी। एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर आई होगा, वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर जे होगा और जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर के होगा। सो यहाँ पर आपने वेक्टर ए का, दैट इज जो वेक्टर फील्ड ए है उसका डाइवर्जेंस कंप्यूट करना। सो आप जानते हैं कि किसी भी फंक्शन की डाइवर्जेंस आपने निकालनी हो, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड ए, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड ए इज डिनोटेड बाय डेल डॉट वेक्टर फील्ड। सो यहाँ पर डेल इज वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। सो वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर इज डिफाइन एज आयोटा डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप del by del z. So here del is vector differential operator and this vector differential operator operate on a vector field capital A for computing the divergence. तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि डाइवर्जेंस का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है। सो the physical significance of the divergence of a vector field is the rate at which density exists a given region of space. सो यहाँ पर आपने डाइवर्जेंस कंप्यूट करना, तो डाइवर्जेंस कंप्यूट करने के लिए हम डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड ए इज इक्वल टू डेल डॉट वेक्टर फील्ड ए मीन्स आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप del by del z dot product with vector a. Vector a is 3x z I cap plus 2 xy j cap minus yz k cap. अब आपको पता कि I dot I is 1, j dot j is 1, k dot k is 1 and other dot product will be 0, that is I dot j, j dot k, k dot I is equal to 0. So iota dot product with iota so is 1, that is del by del x of 3xz, j dot j is 1, so plus del by del y of 2xy, k dot k is 1, so minus डेल बाई डेल जेड ऑफ वाई जेड, डेट इज आपने पार्शियल डेरिवेटिव कंप्यूट करना 3xz का विद रेस्पेक्ट टू x. सो दिस विल बी पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x इज 3z प्लस partial derivative of 2xy with respect to y keeping x as a constant is 2x minus partial derivative of yz with respect to z is minus y. So this is divergence of vector field A. So 3z plus 2x minus y. But यहाँ पर आपने divergence of a vector field A कंप्यूट करना पॉइंट 1, 1, 1 पर, डेट इज x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू 1. सो आपने जो डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड कंप्यूट किया तो ये आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी होगी, बिकॉज व्हेन वी कंप्यूट द डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर फील्ड से A इज इक्वल टू ए स्केलर क्वांटिटी, as well as when we compute the curl of a vector field then we obtain a vector quantity. But if we compute the gradient of a scalar field then we obtain a vector quantity. So here compute the divergence at point 1, 1, 1. So आप x is equal to 1, y is equal to 1, z is equal to 1 यहाँ पर पुट करेंगे. So 3 into 1 plus 2 into 1 minus 1. So 3 plus 2 minus 1, 5 minus 1 is equal to 4. So यहाँ पर आप ऑप्शन सर्च करेंगे A divergence at the given point is 4. सो 4 ही हमने कंप्यूट किया, सो ये मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा. B इज 2, ये रॉन्ग ऑप्शन होगा. C इज 3, ये भी रॉन्ग ऑप्शन होगा. एंड D इज 0, दिस इज रॉन्ग ऑप्शन. सो ओनली A इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटी, दैट इज पॉइजन
रैंडम वेरिएबल दैट इज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। सो यहाँ पर आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, प्रॉब्लम इज द नंबर ऑफ पावर आउटेज in a city in a given time interval is a Poisson random variable with mean of 2 power outages per month. The Poisson distribution is given by, यहाँ पर आपको Poisson distribution given है, P of y is equal to e की पावर माइनस वाई म्यू टू द पावर y अपॉन y फैक्टोरियल. Then the probability of exactly 2 power outages in 2 months rounded off to 2 decimal places is equal to, that is आपने जो probability compute करनी है exactly 2 power outages की compute करनी है for 2 months, that is 2 months में आपने probability compute करनी है. So यहाँ पर आप इसका solution मैं आपको बता रहा हूँ, आप देखिए हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ y गिवन है e की पावर माइनस म्यू म्यू टू द पावर y अपॉन y फैक्टोरियल. सो हमें प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करनी है एग्जैक्टली 2 पावर आउटेजेस इन 2 मंथ्स. तो यहाँ पर मेरे पास जो म्यू का वैल्यू होगा, म्यू इज 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मंथ्स. तो यहाँ पर मेरे को गिवन है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है एग्जैक्टली 2 पावर आउटेज इन 2 मंथ्स. अगर यहाँ पर 3 मंथ्स होता तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 4 मंथ्स होता 2 मल्टीप्लाई बाई 4. तो यहाँ पर मंथ कितने हैं 2, सो 2 इंटू 2 इज 4. सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली y इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू e की पावर म्यू, म्यू मीन्स 4, सो e की पावर माइनस 4 इंटू 4 म्यू टू द पावर y दैट इज 4 टू द पावर 2 और y कितना यहाँ पर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल. सो यहाँ पर आप कैलकुलेटर की हेल्प से e की पावर माइनस 4 का वैल्यू निकालेंगे तो ये बनेगा 0.02 और 4 की पावर 2 बनेगा 16 एंड 2 फैक्टोरियल इज 2. सो 2 से 16 को कैंसिल करेंगे, ये बनेगा 8 एंड 8 टू जा 16, तो वैल्यू आएगी 0.16. So this is the correct value, this is the correct probability when y is exactly y is equal to 2, correct to 2 decimal places. Now next question is based on the matrix algebra. So question is the an incompressible fluid flows through a network of pipes as shown in the given figure. तो फिगर ये आपको गिवन है यहाँ पर. The total pressure drop across point A and point B is 2 kilopascal. The flow rates in meter cube per second in sections 1, 2 and 3 आर डिनोटेड बाई Q1. सो यहाँ पर जो फ्लो रेट होगा सेक्शन 1 पर Q1, सेक्शन 2 पर Q2 एंड सेक्शन 3 पर Q3 रेस्पेक्टिवली. द प्रेशर ड्रॉप्स इन किलो पास्कल आर 4 Q1, 3 Q2 एंड 2 Q3 अक्रॉस सेक्शन 1, 2 एंड 3. दैट इज अगर हम फ्लो रेट्स की बात करें सेक्शन 1, 2, 3 पर तो ये Q1, Q2, Q3 से डिनोट किए हैं, और प्रेशर ड्रॉप्स की बात करें हम सेक्शन 1, 2, 3 पर तो ये 4 Q1, 3 Q2 एंड 2 Q3 गिवन है. सो फॉर ए स्टेडी स्टेट फ्लो ऑपरेशन, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन फॉर फ्लो रेट्स इज गिवन बाई, दैट इज यहाँ पर क्वेश्चन में ही आपको स्टेडी स्टेट फ्लो ऑपरेशन गिवन है और ये मैट्रिक्स की फॉर्म में गिवन है 4, 3, 0, 0, -3, 2, 0, x -1. जो आपको फ्लो रेट्स गिवन है Q1, Q2, Q3 इज इक्वल टू 2, 0, -0.5. द करेक्ट ऑप्शन फॉर द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ x, दैट इज आपने x की न्यूमेरिक वैल्यू निकालनी है, ये वैल्यू आपने कंप्यूट करनी है, और इस वैल्यू को कंप्यूट करने के लिए आप स्टेडी स्टेट फ्लो
ऑपरेशन का कंसेप्ट पढ़ेंगे। वो क्या होगा मैं आपको बता रहा हूँ। स्टडी स्टेट फ्लो इज डिफाइंड एज ए फ्लो कंडीशन। स्टडी स्टेट फ्लो इज डिफाइंड as a flow condition under which the pressure at any point in the reservoir remains कांस्टेंट ओवर टाइम। तो यहां पर आपके पास स्टडी स्टेट कंडीशन फॉर रिजर्वायर गिवन है और ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आपको गिवन है फॉर फ्लो रेट्स पर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आपको गिवन है। और इसके लिए आप क्या करेंगे, फ्लो रेट दैट इज जो फ्लो रेट होगा सेक्शन 1 पर, फ्लो रेट at section 1 is equal to sum of the flow rates at section 2 and 3। so यहाँ पर आपके पास जो कंडीशन मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन होगी फ्लो रेट at the section 1 is equal to sum of the flow rates at sections 2 and 3। that is जो सेक्शन 1 पर फ्लो रेट होगा वो इक्वल टू होगा सम ऑफ द फ्लो रेट्स एट सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। तो आपने यहाँ पर सेक्शन 1 पर फ्लो रेट है आपके पास Q1, सेक्शन 2 पर फ्लो रेट्स है आपके पास Q2 और सेक्शन 3 पर फ्लो रेट्स है आपके पास Q3। so Q1 is equal to Q2 plus Q3। so this is the condition for solving the given system of linear equations। now next is taking the value of Q1 is equal to Q2 plus Q3 in the given system of linear equations means we have a system of linear equation 4 3 0 0 minus 3 2 0 x minus 1 Q1 Q2 Q3 is equal to 2 0 minus 0.5। तो आपने Q1 को Q2 plus Q3 पुट करना बिकॉज फ्लो रेट एट सेक्शन 1 इज इक्वल टू सम ऑफ द फ्लो रेट एट सेक्शन 2 एंड 3। तो 4 3 0 0 minus 3 2 0 x minus 1 Q1 है मेरे पास Q2 plus Q3 is equal to 2 0 minus 0.5। तो ये आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जनरेट हुआ। दैट इज जैसे ही आपने Q1 को Q2 plus Q3 यहाँ पर पुट किया तो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आपके पास जनरेट हुआ। अब आपने क्या करना, इस मैट्रिक्स सिस्टम को इक्वेशन फॉर्म में रीराइट करना। तो इसको इक्वेशन फॉर्म में रीराइट करने का मीनिंग क्या होगा, फर्स्ट रो को आप मल्टीप्लाई करेंगे अननोन से। सो 4 टाइम्स ऑफ Q2 प्लस Q3 प्लस 3 टाइम्स ऑफ Q2 प्लस 0 टाइम्स ऑफ Q3 इज इक्वल टू कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इन द राइट हैंड साइड दैट इज 2। और वी कैन राइट दिस इक्वेशन इज 4Q2 plus 3Q2 that is 7Q2 plus 4Q3 is equal to 2। say this is equation 1। इसी तरह से आप सेकंड रो को अननोन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 0 टाइम्स ऑफ Q2 प्लस Q3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ Q2 एंड प्लस 2 टाइम्स ऑफ Q3 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड दैट इज 0। तो यहाँ से आपके पास इक्वेशन जैसे ही 0 से मल्टीप्लाई करेंगे ये टर्म 0 बन जाएगी। तो इक्वेशन जनरेट होगी आपके पास माइनस 3Q2 प्लस 2Q3 इज इक्वल टू 0। से दिस इज इक्वेशन 2।
अब आप इक्वेशन थर्ड रो को अननोन मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को आप Q2 प्लस Q3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 बन जाएगा, प्लस x टाइम्स ऑफ Q2 माइनस Q3 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड माइनस 0.5। सो इक्वेशन बनेगी x Q2 माइनस Q3 इज इक्वल टू माइनस 0.5। दिस इज इक्वेशन 3। तो यहाँ पर आपके पास इक्वेशन 1, 2 एंड 3 साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस होंगी फॉर Q2 एंड Q3। सो आपने पहले Q2 एंड Q3 को कंप्यूट करना, सॉल्व करना। सो Q2 एंड Q3 को सॉल्व करने के लिए आपने क्या किया, इक्वेशन 1 से आपने 2 टाइम्स ऑफ इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट किया, तो आपके पास इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन 1 होगी 7Q2 प्लस 4Q3 इज इक्वल टू 2। तो आपने इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो वी ऑब्टेन माइनस 6Q2 प्लस 4Q3 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को आपने सब्ट्रैक्ट करना, तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 7 प्लस 6 13Q2 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से आपके पास Q2 का वैल्यू बनेगा 2/13। सो Q2 इज 2/13। अब ये Q2 इज इक्वल टू 2/13 इक्वेशन 1 और 2 में पुट कर दीजिए। तो हमने क्या किया, ये Q2 का वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट किया, पुट द वैल्यू ऑफ Q2 इन इक्वेशन 2। सो इक्वेशन 2 में पुट किया -3 इंटू Q2 इज 2/13 प्लस 2Q3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आई 2Q3 इज इक्वल टू -6/13। ये जाएगा प्लस 6/13। सो Q3 इज इक्वल टू 6/13 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 3/13। सो ये आपके पास वैल्यू Q3 की मिली। नाउ अब आपके पास Q2 भी मिल गया, Q3 भी मिल गया, और ये दोनों वैल्यू, बिकॉज आपने x को कंप्यूट करना, तो ये दोनों वैल्यू हम इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, बिकॉज इक्वेशन 3 आपके पास xQ2 माइनस Q3 इज इक्वल टू -0.5। तो अगर आप Q2 एंड Q3 पुट कर दें तो आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। तो मैंने क्या किया, x तो मेरा अननोन रहेगा, यहाँ पर Q2 का वैल्यू मेरे पास 2/13 है और Q3 हमने कंप्यूट किया 3/13 इज इक्वल टू -0.5 को हम लिख सकते हैं -1/2, दैट इज माइनस और 5 to 10, सो -1/2। तो यहाँ से हम x का वैल्यू कंप्यूट करेंगे, x इंटू 2/13 इज इक्वल टू 3/13 -1/2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 6 -13/13 to 26। तो ये x की वैल्यू है मेरे पास, x मल्टीप्लाई बाई 2/13। तो यहाँ से x का वैल्यू मिलेगा, इसको मैं राइट हैंड साइड में लेके जाऊँगा, 13/2 मल्टीप्लाई बाई दिस इज 6 माइनस 13 इज -7/26। तो यहाँ पर 13 to 26 और ये आएगा -7/2 to 4, और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये वैल्यू आएगी मेरे पास 1.75 नेगेटिव। तो यहाँ पर मेरे पास 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं। ऑप्शन ए -2, सो -2 इज नॉट ए करेक्ट वैल्यू ऑफ x। ऑप्शन बी है -0.50, सो दिस इज नॉट ए करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन सी है मेरे पास -1, दिस इज नॉट ए करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन डी इज -1.75, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द given that is for the value of x for a given system of linear equations. So this is the brief solution for the given problem. Next question is based on the helix. In that case, the axis of a cylinder of radius small a
एंड लेंथ कैपिटल एल, रेडियस इज स्मॉल ए और लेंथ आपके पास कैपिटल एल, इज अलोंग द जेड एक्सिस, सेंटर ऑफ द फ्लैट सरफेस एट 0 0 0 एंड इन extensible string of negligible thickness is wound tightly as a right-handed helix around the curved surface of the cylinder. The two ends of the string at A00 and at A0L. The parametric equation of the right-handed helix is given by r theta is equal to A cos theta, A sin theta, C theta, where r is the position vector and theta is in the radian. Given that the value of small a is 2 upon pi centimeter, small c is 1 upon pi centimeter, small capital L is 4 centimeter, the total length of the string rounded off to 2 decimal places is equal to, that is यहाँ पर आपने हेलिक्स की टोटल लेंथ्स को कंप्यूट करना और वो करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस तक आपने कंप्यूट करना। तो आप इसका सॉल्यूशन किस तरह से कंप्यूट करेंगे, क्या प्रोसीजर होगा इसका सॉल्यूशन कंप्यूट करने का, वो मैं भी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले आपने सिलिंड्रिकल फॉर्म में हेलिक्स को जनरेट किया। हेलिक्स को जनरेट करने का मीनिंग आपके पास, सपोज एक ये कोई भी सिलिंड्रिकल सरफेस होगी, इस सरफेस पर आपने राइट हैंडेड हेलिक्स लेना, दिस इज द राइट हैंडेड हेलिक्स, एंड यहाँ पर आपके पास ये आपके पास हेलिक्स की लेंथ होगी जिसको आप कैपिटल एल से डिनोट करेंगे, और जो आपके पास पिच होगी, पिच मीन्स ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 पिच होगा और इस पिच को हम स्मॉल पी से डिनोट करेंगे। तो आपके पास रेडियस ए गिवन है, क्या क्या गिवन है आपको, रेडियस ए गिवन है, ए इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई सेंटीमीटर। पिच आप कंप्यूट करेंगे, पिच को कंप्यूट करने का फॉर्मूला होगा पिच डिनोटेड बाय स्मॉल पी इज इक्वल टू 2 पाई सी। 2 पाई सी मीन्स 2 पाई इंटू सी, सी का वैल्यू आपके पास गिवन है 1 अपॉन पाई, सो पाई से पाई कैंसिल होकर ये आगे आपके पास 2 सेंटीमीटर। तो ये जो पिच आपने कंसिडर की, दैट इज ये पिच आप नंबर ऑफ टर्न्स, इस हेलिक्स में जितने भी नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, दैट इज स्मॉल एन, आप किस तरह से कंप्यूट करेगा ये पिच पर डिपेंड करेगा। तो पिच निकालने का फॉर्मूला होगा 2 पाई सी, तो 2 पाई और सी आपको गिवन है 1 अपॉन पाई सेंटीमीटर, सो पिच आपके पास आई 2 सेंटीमीटर। आपने पिच निकाला, अब आप कंप्यूट करेंगे नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स को कंप्यूट करने के लिए इसको हम स्मॉल एन से डिनोट करेंगे, और स्मॉल एन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द हेलिक्स डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ द पिच। सो लेंथ ऑफ द हेलिक्स कैपिटल एल आपको गिवन है 4 अपॉन पिच आपने कंप्यूट की 2 इज इक्वल टू 2। सो नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे 2, इन दिस हेलिक्स नंबर ऑफ टर्न्स इज 2। अब आपने जो भी कर्व्ड सरफेस ली है उसकी सरकमफ्रेंस कंप्यूट करेंगे। तो सरकमफ्रेंस कितनी होगी, यहाँ पर सरकमफ्रेंस को हम C से डिनोट करेंगे, और सरकमफ्रेंस होगी 2 पाई ए, बिकॉज ए रेडियस होगी तो 2 पाई ए, 2 पाई और ए का वैल्यू आपको गिवन है 2 अपॉन पाई, सो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 4। अब आपने लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कंप्यूट करना, सो द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज इक्वल टू, फॉर्मूला स्टैंडर्ड फॉर्मूला इसका, n टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, दैट इज जब आप लेंथ को कंप्यूट करेंगे तो लेंथ बनेगा n आपने कितना कंप्यूट किया, n का वैल्यू है मेरे पास 2 टाइम्स ऑफ c है आपके पास, c का वैल्यू 4 स्क्वायर प्लस p इज 2, सो p स्क्वायर
that is 2 square. So this is 2 into 4 square is 16 plus 2 square is 4. So this is 2 into ये बन गया 20. 20 को हम लिखेंगे इज इक्वल टू रूट 20. सो इसको हम लिखेंगे 2 4 इंटू 5. सो ये बन जाएगा 2 इंटू 2 रूट 5. सो ये बनेगा 4 रूट 5. सो विद द हेल्प ऑफ द कैलकुलेटर, सो वैल्यू ऑफ length of the helix is 8.94 centimeter. So this is the required result for the given problem. Now next question is based on again numerical methods. So question is the equation x की power 3 minus 3x minus 5 is equal to 0. So this is a non-linear equation. Why this is non-linear? Because degree is greater than 1 of this equation is to be solved using the Newton-Raphson method. That is आपने इस equation को solve करना with the help of the Newton-Raphson method. Starting with an initial guess of 2. That is initial approximation आपको 2 given है. The value of x after 3 iterations, आपने x को कंप्यूट करना आफ्टर 3 आइट्रेशंस एंड राउंडेड ऑफ 3 डेसिमल प्लेसेस. दैट इज जो आप x कंप्यूट करेंगे उसको 3 नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस तक आपने राउंड ऑफ करना. तो उस केस में आपने न्यूटन रैप्सन मेथड अप्लाई करना. तो यहाँ पर आपके पास गिवन है इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 माइनस 3x माइनस 5 ना, दिस इज इक्वल टू 0. ये गिवन है आपको इक्वेशन 1. डैट इज जब आप न्यूटन रैप्सन मेथड को अप्लाई करेंगे तो न्यूटन रैप्सन मेथड का जनरल अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला बनता है एक्स एन प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ एक्स एन अपॉन डेरिवेटिव ऑफ एफ एट एक्स इज इक्वल टू एक्स एन. और यहाँ पर एन का वैल्यू वेरी करेगा 0 1 2 3 एंड सो ऑन. तो इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करके 3 आइट्रेशंस को कंप्यूट करेंगे और 3 आइट्रेशंस में आप x कंप्यूट करेंगे. इन दैट केस एफ एक्स इज एक्स की पावर 3 माइनस 3x माइनस 5. अब आपने क्या करना होगा, बिकॉज डेरिवेटिव की हमें रिक्वायरमेंट होगी तो हमने इसको बोथ साइड x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया. सो दिस इज 3x स्क्वायर माइनस 3. अब आपके पास ये इक्वेशन 2 होगी. आपने क्या किया, एट बिकॉज फॉर्मूला आपने यूज किया इन द टर्म्स ऑफ द एक्स एन, तो आपने x को एक्स एन पुट किया. तो यहाँ से आपने एफ एक्स एन कंप्यूट किया. एफ एक्स एन कंप्यूट किया तो एफ एक्स एन कितना मिलेगा आपको, जैसे ही आप x को एक्स एन से रिप्लेस करेंगे एक्स एन क्यूब माइनस 3xn माइनस 5 एंड एफ डैश एक्स एन इज 3xn स्क्वायर माइनस 3. तो अब आपने इन सब वैल्यू को फॉर्मूले में पुट करना. सो जब आप फॉर्मूले में इसको पुट करेंगे तो वैल्यू आपके पास आएगी एक्स एन प्लस 1 इज इक्वल टू, फॉर्मूला मेरे पास एक्स एन माइनस एफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन. This is the general approximation formula for the Newton-Raphson method, and here n varies from 0, 1, 2, 3 and so on. तो पहले मैं यहाँ पर फंक्शनल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगा. एक्स एन माइनस एफ एक्स एन हमारे पास है एक्स एन क्यूब माइनस 3xn माइनस 5 डिवाइड बाई एफ डैश एक्स एन. सो एफ डैश एक्स एन बनेगा हमारे पास 3xn स्क्वायर माइनस 3. आपने इसको सिंप्लीफाई किया. सिंप्लीफाई करने के लिए आपने इसको एक्स एन को मल्टीप्लाई किया 3xn स्क्वायर माइनस 3 माइनस एक्स एन क्यूब माइनस माइनस प्लस 3xn माइनस माइनस प्लस 5 अपॉन 3xn स्क्वायर माइनस 3. तो यहाँ पर आपके पास बनेगा 3xn क्यूब माइनस 3xn माइनस xn क्यूब प्लस 3xn प्लस 5 अपॉन 3xn स्क्वायर माइनस 3. तो यहाँ पर मेरे पास प्लस के 3xn से माइनस के 3xn कैंसिल हो जाएंगे और ये मेरे पास यहाँ पर माइनस होगा
माइनस एक्स एन होगा, तो 3xn क्यूब से 1xn क्यूब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बनेगा 2xn क्यूब प्लस 5/3 xn² माइनस 3। अब आपने क्या करना, यहाँ पर बिकॉज 3 आइट्रेशंस हमने लेना है तो पहले हम n को 0 पुट करेंगे। तो जैसे ही आप n को 0 पुट करेंगे तो फर्स्ट आइट्रेशन बनेगा x1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x0 क्यूब प्लस 5/3 टाइम्स ऑफ x0² माइनस 1, और इनिशियल अप्रोक्सीमेशन x0 आपको गिवन है 2। सो ये x0 का वैल्यू आप यहाँ पर पुट करेंगे 2 इंटू 2³ प्लस 5/3 2² माइनस 1। Solving by calculator, so we obtain this value is 2.333, correct to 3 decimal places. Now again put n is equal to 1. When we put n is equal to 1, so we obtain iteration 2. When we put n is equal to 0, so we obtain iteration 1. So iteration 2 आपके पास बनेगा x2, that is आपने क्या करना, फॉर्मूले में n को 1 पुट करना। सो 1 + 1 इज 2, दैट इज x2 इज इक्वल टू 2x1, 2x2 इज इक्वल टू 2x1 क्यूब प्लस 5/3 x1² माइनस 1, और x1 का वैल्यू 2.33 आपने पुट करना तो ये बनेगा वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ 2.33 क्यूब प्लस 5/3 2.33² minus 1, and after solving this with the help of the calculator, so we obtain 2.280. Similarly put n is equal to 2. When we put n is equal to 2 in the approximation formula, then we obtain the third iteration which is denoted by x3. x3 is equal to twice of x2 cube प्लस 5/3 टाइम्स ऑफ x2² माइनस 1, डैट इज ये जो वैल्यू आप हम n को 0 1 2 3 पुट कर रहे हैं ये आप यहाँ पर पुट कर रहे हैं, और ये वैल्यू xn + 1 के इक्वल होगी। जैसे ही आप n को 0 पुट करेंगे तो आपको मिलेगा x1, पुट n इज इक्वल टू 1, व्हेन वी ऑब्टेन x2, पुट n इज इक्वल टू 2, we obtain x3, that is put n is equal to 0 here, so x1 is 2x0 cube plus 5/3 x0² minus 1। ऐसे ही आप n को 1 2 पुट करेंगे तो आपके पास अप्रोक्सीमेशन 2 और 3 मिलेगा। तो थर्ड अप्रोक्सीमेशन होगा 2x2 क्यूब प्लस 5/3 टाइम्स ऑफ x2 क्यूब x2² माइनस 1। तो x2 हमने कंप्यूट किया 2.280, तो ये वैल्यू हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे 2 टाइम्स ऑफ 2.280 क्यूब प्लस 5/3 टाइम्स ऑफ 2.280² minus 1, and solving with the help of the calculator, so we obtain 2.279. So this is the value of x after the 3 iterations correct to 3 decimal places. So this is the required value of x. Now next question, based on the probability, that is based on the statistical techniques. A data set containing n is equal to 10 independent measurements in pair form xi, yi, that is यहाँ पर i vary करेगा, i vary from 1 2 3 up to 10, n number of observations आपको given है, is to be fitted by a simple linear regression model. The least square estimates of regression coefficients are obtained, and regression estimate is given by y cap is equal to beta naught cap plus beta 1 cap into x, where beta naught cap is equal to summation I varies from 1 to n yi upon n minus beta 1 cap summation I varies from 1 to n xi upon n, and beta 1 cap is equal to covariance of xy upon variance of x.
यहाँ पर गिवन है वेयर CXY इज द सैंपल कोवेरिएंस एंड वेरिएंस ऑफ X इज द सैंपल वेरिएंस. द वैल्यूज आर गिवन बिलो. Summation I from 1 to 10 xi is equal to 25. Summation I varies from 1 to 10 yi is equal to 37. Summation I is equal to 1 to 10 xi square is equal to 108. Summation yi square I varies from 1 to 10 is equal to 155 and summation I varies from 1 to n xi yi is equal to 120. ये डेटा, ये क्वेश्चन आपको गिवन है और इस क्वेश्चन को जितना आपको पढ़ने में टाइम लगेगा उससे कम समय पर आप इसको सॉल्व कर लेंगे. फॉर द गिवन डेटा सेट द अनबाइस्ड वेरिएंस फॉर द एरर yi माइनस yi कैप राउंडेड ऑफ टू डेसिमल प्लेसेस. दैट इज आपको सारे फॉर्मूले गिवन है, इसमें पूरा डेटा वैल्यू आपको गिवन है, जस्ट फॉर्मूले में सिंप्लीफाई करके आपको इसको कंप्यूट करना. डैट इज आपने अनबॉइस्ड वेरिएंस का एरर कंप्यूट करना. तो अनबॉइस्ड वेरिएंस का एरर कंप्यूट करने के लिए मैं आपको इसका डिटेल प्रोसीजर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. सो डिटेल प्रोसीजर इज now when we compute the unbiased variance for the error yi minus yi cap. So the unbiased variance for the error yi minus yi cap is equal to, फॉर्मूला बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ SSE अपॉन n माइनस 2. अब SSE क्या होगा? वेयर SSE मीन्स सम ऑफ द स्क्वायर एरर्स. सम ऑफ द स्क्वायर एरर्स इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर एरर्स ऑफ XY माइनस बीटा 1 कैप सम ऑफ द स्क्वायर एरर्स ऑफ XX. तो ये अनबॉइस्ड वेरिएंस फॉर द एरर yi माइनस yi कैप इज स्क्वायर रूट ऑफ SSE अपॉन n माइनस 2. अब SSE मैंने यहाँ पर डिफाइन किया SSXY माइनस बीटा 1 कैप SSXX. अब ये सारी वैल्यूज आपको गिवन है. अब आपने सबसे पहले SSXY कंप्यूट करना. तो इसका फॉर्मूला गिवन है आपको कोवेरिएंस ऑफ XY अपॉन दिस फॉर्मूला इज दैट इज सम ऑफ स्क्वायर एरर्स ऑफ X एंड Y इज इक्वल टू समेशन XY दैट इज I varies from 1 to 10 XI YI माइनस समेशन XI समेशन YI अपॉन n. मेरे पास 10 ऑब्जर्वेशंस गिवन है इज इक्वल टू समेशन XI YI का वैल्यू मुझे गिवन है, समेशन XI YI वैल्यू गिवन है 120. सो दिस इज 120 माइनस समेशन X आपको गिवन है 25, समेशन Y आपको गिवन है 37 डिवाइड बाई 10. सिंप्लीफाई करेंगे इसको हम कैलकुलेटर की हेल्प से. सो वी ऑब्टेन 27.50. अब आपने SSXX कंप्यूट करना. ये होगा आपके पास मीन एंड दिस इज समेशन I फ्रॉम 1 to 10 XI स्क्वायर माइनस समेशन X इंटू समेशन X दैट इज समेशन X होल स्क्वायर अपॉन n. तो यहाँ पर आपने समेशन XI स्क्वायर आपको गिवन है, समेशन XI स्क्वायर गिवन है 108 माइनस समेशन X गिवन है आपको 25. सो 25 स्क्वायर अपॉन n इज 10. व्हेन वी सॉल्व दिस एक्सप्रेशन सो वी ऑब्टेन वैल्यू इज 45 माइनस 0.50. अब हमें बिकॉज आपको जो प्रॉब्लम में गिवन है फॉर्मूला में बीटा नोट एंड बीटा नोट
आपको गिवन है समेसन वाई आई अपॉन एन माइनस बीटा वन कैप समेसन एक्स आई अपॉन एन। तो पहले हम बीटा वन कंप्यूट किया, बीटा वन कंप्यूट करने के लिए हम क्या करेंगे, बीटा वन कैप हम कंप्यूट करेंगे विद द हेल्प ऑफ द गिवन फॉर्मूला। बीटा वन गिवन है आपको कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन वेरिएंस ऑफ एक्स, और इसको हम लिखेंगे समेसन एक्स आई वाई आई माइनस समेसन एक्स आई इंटू समेसन वाई आई अपॉन एन, दिस इज द नोमिनेटर, डिवाइड बाई वेरिएंस हम लिखेंगे समेसन एक्स आई स्क्वायर माइनस समेसन एक्स होल स्क्वायर अपॉन एन। यहाँ पर हम बिकॉज ये फॉर्मूला बनेगा एस एक्स वाई अपॉन एस एक्स एक्स, और ये दोनों वैल्यू हमने कंप्यूट की। एस एक्स वाई हमने कंप्यूट किया 27.50 और एस एक्स एक्स कंप्यूट किया 45.50। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू मिलेगी 0.60। अब आपने बीटा वन कैप भी कंप्यूट किया, एस एक्स वाई भी कंप्यूट किया और एस एक्स एक्स भी कंप्यूट किया। सो देयरफॉर सम ऑफ स्क्वायर एरर्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपको मैंने बताया था एस एक्स वाई माइनस बीटा वन कैप एस एक्स एक्स। तो एस एक्स वाई हमने कंप्यूट किया 27.50 माइनस बीटा वन कैप हमने कंप्यूट किया 0.60 मल्टीप्लाई बाई एस एक्स एक्स हमने कंप्यूट किया 45.50। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी 0.20। अब हमें कंप्यूट करना एरर। सो अनबॉयस्ड द अनबॉयस्ड एरर, दैट इज द अनबॉयस्ड वेरिएंस फॉर द एरर। फॉर्मूला आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया, फॉर्मूला बनेगा वाई आई माइनस वाई आई कैफ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस ई अपॉन एन माइनस 2। तो एस ई हमने कंप्यूट किया 0.20 एंड एन इज 10 माइनस 2। सो ये वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट ऑफ 0.20 अपॉन 8 एंड दिस विल बी 0.025 and square root of 0.025 is 0.16। तो ये आपके पास अनबॉयस्ड वेरिएंस होगा। अगर आपने बॉयस्ड वेरिएंस कंप्यूट करना हो फॉर द सेम डेटा, सो फॉर्मूले में बस सिंगल चेंज होगा, फॉर्मूला बनेगा एस ई अपॉन एन माइनस 1। ये फॉर्मूला होगा बॉयस्ड वेरिएंस फॉर द एरर वाई आई माइनस वाई आई कैप के लिए। बट फॉर योर knowledge, so when we compute the biased variance, so using this formula and same expressions will be same. Now next question is based on the complex number, and question is two complex numbers are given as z1 is equal to e की पावर I theta 1 and z2 is equal to e की पावर I theta 2, where iota is equal to square root of -1 and theta 1 and theta 2 are the principal arguments, given that theta 1 is not equal to theta 2 and magnitude of theta 1 minus theta 2 not equal to pi. If relation m is equal to square root of cos theta 1 plus cos theta 2 whole square plus sin theta 1 plus sin theta 2 whole square, so which one of the following condition is correct? That is, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस गिवन है, इसमें से कौन सा वैलिड ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपको जो भी प्रॉब्लम में थीटा 1 एंड थीटा 2 गिवन है, ये प्रिंसिपल आर्गूमेंट्स गिवन होंगे, और यहाँ पर थीटा 1 इज नॉट इक्वल टू थीटा 2 एंड डिफरेंस थीटा 1 एंड थीटा 2 इज नॉट इक्वल टू पाई। सो हमें m गिवन है, m इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा 2 होल स्क्वायर। अब मैं इसका a प्लस बी के होल स्क्वायर से होल स्क्वायर एक्सपेंड करूँगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी। तो यहाँ पर
ए मेरा cos थीटा 1 होगा और बी मेरा cos थीटा 2 होगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हम लेंगे cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा 2 प्लस ट्वाइस cos थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस सिमिलरली हम sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2 का होल स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे तो ये बनेगा sin स्क्वायर थीटा 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा 2 प्लस 2 sin थीटा 1 sin थीटा 2। तो ये आपने m को सिंप्लीफाई किया एंड m इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, अब यहाँ पर आप एक आइडेंटिटी यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बिकॉज कोस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 इज 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 इज 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ cos थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस sin थीटा 1 sin थीटा 2। तो ये एक्सप्रेशन बनेगा, तो ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 इज 2 प्लस 2, अब ये cos a cos b प्लस sin a sin b, तो ये फॉर्मूला बनेगा मेरे पास यहाँ पर cos थीटा 1 माइनस थीटा 2, cos थीटा 1 माइनस थीटा 2। अब यहाँ पर आपके पास जो m आपने कंप्यूट किया, m इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 2 cos थीटा 1 माइनस थीटा 2। सिंस अकॉर्डिंग टू गिवन प्रॉब्लम, सिंस थीटा 1 and थीटा 2 आर द प्रिंसिपल arguments always laying between माइनस पाई टू प्लस पाई। तो आपने प्रिंसिपल आर्गूमेंट्स है तो थीटा लेइंग बिटवीन माइनस पाई टू प्लस पाई, एंड सेकेंड कंडीशन थीटा 1 माइनस थीटा 2 इज नॉट इक्वल टू पाई, दैट इज अगर थीटा 1 माइनस थीटा 2 पाई के इक्वल बनेगा तो ये बन जाएगा मेरा cos पाई, एंड cos पाई इज -1, सो 2 माइनस 2 दैट इज m का वैल्यू 0 आ जाएगा। बट कंडीशन आपको गिवन है थीटा 1 माइनस थीटा 2 इज नॉट इक्वल टू पाई, तो हम एक थीटा का वैल्यू लेंगे जो -पाई टू प्लस पाई के बिटवीन लाइज करेगा। सो मैंने यहाँ पर एक थीटा को कंसिडर किया, थीटा इज इक्वल टू पाई अपॉन 3, दैट इज थीटा मीन्स थीटा का वैल्यू होगा यहाँ पर थीटा 1 माइनस थीटा 2 मॉड, सो थीटा 1 माइनस थीटा 2 मीन्स थीटा, और ये वैल्यू आपने पाई अपॉन 3 कंसिडर की। अब इस थीटा 1 माइनस थीटा 2 को मैं फॉर्मूले में पुट करूँगा तो ये बनेगा 2 प्लस 2 cos पाई अपॉन 3। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास 2 प्लस 2 cos पाई अपॉन 3 विद द हेल्प ऑफ द कैलकुलेटर, तो ये वैल्यू आएगी 1.732। तो ये m का वैल्यू होगा, m का वैल्यू 1.732 होगी, बट आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं m लेइंग बिटवीन 2 and 3, तो आपने तो m का वैल्यू कंप्यूट किया 1.732, अब दिस वैल्यू इज नॉट लेइंग बिटवीन दिस इंटरवल, सो फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। सेकेंड, m लेइंग बिटवीन 0 and 2, दैट इज m पॉजिटिव होगा बट लेस देन 2 होगा, तो ये वैल्यू पॉजिटिव है बट लेस देन 2 होगी, इट मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। m 0 नहीं होगा बिकॉज थीटा 1 माइनस थीटा 2 इज नॉट इक्वल टू पाई है, और m इज इक्वल टू 2 भी नहीं होगा। सो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज m लेइंग बिटवीन 0 and 2। सो this is the detailed explanation of the questions in GATE Petroleum Engineering 2020. So thank you very much from Petrogate Academy.